Good morning, everybody. TY BCom Division C. In the previous lectures, we discussed about consumer behavior. We discussed about market segmentation. We discussed about marketing information system. We discussed about marketing research, various concept connected with the marketing, various topic connected with the marketing we have already discussed. I hope I am audible properly to everybody. Am I audible? If somebody is not able to listen to me, please check your internet connection. Okay. Today we are going to discuss an important issue or an important topic of marketing, that is product life cycle. Every product has a life. Every product has a life like a human being. Just like you and me passes from the various age, passes from the various different age groups of our life, like childhood, young, then it comes a person with between the age of 30 to 50, then 50 to 60, then 60 and above, a retired person. So we also suffers from a different, we also passes on from the different structure of the age. Same way, every product is also having their own life. Just like a human being, first there is a birth, then there is a growth, then there is a maturity, and then comes a retirement, or I can say finish or ending of the product. So every product has also life like a human being. Now it is very, very necessary to give a healthy and long life to every product. It is necessary that we should have a long and healthy life for the products. Because more the life, better the life of the product, long the life of the product, there is more chance of getting a profit more and more. We will be in a position to earn more profit. So what exactly I need to say to you people is that every product has a life, and that is called as a product life cycle. What we are going to discuss in this chapter, what is product life cycle and what are the phases of product life cycle. Basically, this chapter is divided into two parts. This chapter is divided into two parts. Number one, product development stage, and number two, product life cycle. Once the product development stage is over, product life cycle begins. एक बार product development stage finish होता है, उसके बाद शुरू होता है product life cycle. Once the product development stage is over, the product life cycle begins. Now when we speak about the product development stage, यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले कैसे डेवलप होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा.
क्योंकि वंस द प्रोडक्ट एंटर इनटू द मार्केट, एक बार प्रोडक्ट मार्केट में एंटर हो गया उसके बाद वो चेंज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो वी हैव टू introduce the product in a proper way, keeping in mind all the conditions, all the proper level of the product, and then only we have to enter into the market with the products. Because product, if once introduced, it cannot be taken back. So this chapter is divided into the two part: product development stage. We have to understand, and we have to understand the product life cycle. And the product life cycle is also divided into 4 phases. Product life cycle के 4 phase हम पढ़ेंगे: product introduction stage, product growth stage, product maturity stage, and product decline stage. मैं फिर से बोलता हूँ: product introduction stage, product growth stage, product maturity stage and product decline stage. Decline stage को product retirement stage भी कहा जाता है. So this is what the particular agenda of the chapter. So this is what the basic agenda of the chapter. What we have to do in this chapter is product development stage पढ़ेंगे, product life cycle पढ़ेंगे, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस पढ़ेंगे. व्हाट आर द स्टेजेस? इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड रिटायरमेंट और डिक्लाइन स्टेज. होप यहां तक आपको सब क्लियर है. यस, yes or no, say yes or no in the chat box. So I will go ahead with the detailed explanation of every stage. If you understood the topic properly, yeah, very good. Very good. Thank you. So, we'll go ahead. We have to understand this chart properly. If you need to understand this chart properly, we need to go to the detail what exactly it is. जरा ध्यान से पढ़ो. Product development. We have to understand here the product development. मुझे एक सिंपल सी बात बताओ. मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट आने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट बनने से पहले तुमको ऐसा नहीं लगता है कि एक उसका माइंड में अपने डिजाइन तैयार होना चाहिए? एक सिंपल सी बात बताओ. फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग ओरिजिनल बाद में बनता है, पहले उसका सैंपल डिजाइन तैयार होता है. यस और नो? हर एक प्रोडक्ट का पहले एक मॉडल बनता है. क्या बनता है? मॉडल. मॉडल का मतलब होता है उसका सैंपल, उसका डिजाइन, उसका कैसा दिखेगा वो प्रोडक्ट. जब बनेगा तब कैसा दिखेगा वो उसका पहले डिसाइड होता है. यस और नो? उसके बाद वो प्रोडक्ट अपना ओरिजिनल स्टेटस लेता है जो हम लोग बनाना चाहते हैं. जब तक वो प्रोडक्ट ओरिजिनली बने तब तक हमारे पास उसका सैंपल के हिसाब से काम करना होता है, क्योंकि सैंपल हमें बताता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है. कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ओरिजिनल तब बनता है जब पहले तुम्हारे माइंड में वो आता है. पहले वो प्रोडक्ट रेडी होने से पहले एक बार उसका किसी ने तो सोचा होगा ना, किसी ने तो सोचा होगा ना कि ये प्रोडक्ट कैसा होगा, क्या, how the product is, how the product is going on, how product is going further, and everything is being clarified in this. So प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, उसमें सबसे पहला यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में हम डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बेचने वाले. So when we speaks about the product development stage, the first thing come is idea generation about the product. Idea generation about the product. Idea generation about the product is nothing but getting the full idea about the product. और एक बात याद रखना, आप लोगों को जो प्रोडक्ट बनाना है वो आपको वो प्रोडक्ट बनाना है जो आपको मार्केट को देना है, मार्केट को जो चाहिए वो. आपको वो प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो आपको आता है, आपको वो प्रोडक्ट डिजाइन करना है जो पब्लिक को चाहिए.
आपको वो नहीं बनाना है जो आपको पसंद है. So you have to design a product in such a way that what is needed in the market. Market में क्या चाहिए वो आपको डिजाइन करना है. You don't have to design what you are able to produce. And the another question you have to answer over here is how do we make this product better? ये प्रोडक्ट को और भी बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ? How can I make this product much better? लोगों तक मैं कैसे अच्छे से पहुंच सकता हूँ? How better we can reach to the people? How better we can reach to the people? So we have to understand what people want. We have to understand how people want. We have to understand the quality people want. We have to understand the design people want. We have to understand everything what people want, without which we cannot do anything. Without which we cannot do anything. So we have to find out the solution of the customer, not the solution of the company. हमें क्या आता है वो ढूंढने से ज्यादा कस्टमर को क्या चाहिए उसको ढूंढने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी. दोस्तों, अगर कल जाके आप कोई बिजनेस चालू करते हो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर वांट, हाउ कस्टमर वांट एंड व्हाट लेवल कस्टमर वांट्स. वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम in immediate way to understand what customer requires. Then comes idea screening. इतने सारे आइडिया तूने लेके आए, इतने सारे आइडिया तूने लेके आए, इतने सारा आइडिया तेरे माइंड में आया, ये वाला बनाना है, वो प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा डिजाइन बनाना है, वैसा डिजाइन बनाना है. अब हर एक आइडिया को स्क्रीनिंग कर, हर एक आइडिया को स्क्रीनिंग कर, चेक कर, फाइंड आउट कर. देख जरा, डू कंज्यूमर वांट दिस प्रोडक्ट? डू कंज्यूमर वांट दिस प्रोडक्ट? क्या कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट चाहिए? क्यों चाहिए? कैसे चाहिए? हाउ? और वो खरीदेगा ये प्रोडक्ट? ये वही प्रोडक्ट है जो उसको चाहिए था या कुछ अलग है? वही है या कुछ और है? देखो जरा, चेक करो. डू कंज्यूमर रियली वांट दिस प्रोडक्ट? सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली कंज्यूमर वांट. डू द कंज्यूमर विल लाइक इट? तो उसको कहते हैं स्क्रूटिनी करना, स्क्रीनिंग करना. यू हैव टू चेक विद every idea you have generated. Then the another thing comes is what competition exists out in market. ये प्रोडक्ट के लिए और कितना कंपटीशन मार्केट में है, ये प्रोडक्ट को बेचने वाले और कितने लोग हैं. हाउ मेनी प्रोडक्ट कंपनीज आर हैविंग सेम प्रोडक्ट सेलिंग and how much better and perfect they are. अच्छा, how people are replying to their product. Everything we have to check. Everything we have to check before selling to the customer. So the first 10-second stage says idea generation and idea screening. अभी तक प्रोडक्ट मार्केट में गया ही नहीं है, प्रोडक्ट का सिर्फ आइडिया आपके माइंड में आया है और वो आइडिया आपको क्या करना है? कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, ओरिजिनलिटी में लाना है, पब्लिक तक पहुंचाना है. सो आइडिया जनरेशन, idea screening, and then you have to develop a concept about the product. That is called as a concept development. It is also known as a concept development. And the concept development is nothing but creating a prototype so consumer can see, feel, etc. So consumer can see, feel, etc. Consumer can understand the exact condition and everything. मैं फिर से कहता हूँ, एक बिल्डिंग बनने से पहले कैसे उसका मॉडल तैयार होता है, कैसे उसका सैंपल तैयार होता है, जिससे कंज्यूमर को समझता है कि एग्जैक्टली ये बिल्डिंग ऐसा ऐसा होने वाला है. दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट. यू मस्ट नो, कस्टमर शुड नो कि मैं आगे आने के टाइम में क्या खरीदने वाला हूँ इधर से. तो आपके सामने जब तक डिजाइन में रेडी रहेगा तब तक आप पॉजिटिवली काम भी नहीं कर पाओगे. सो द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज डेवलपिंग अ कॉन्सेप्ट. So, दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन ऑफ एन आइडिया. जब तक तू सोचेगा नहीं तब तक तू कुछ नया काम नहीं कर पाएगा. ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये जरूरी है सोचना कि अपने को क्या नया करना है.
एक सिंपल सी बात बताओ, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन जस्ट लाइक के देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, हो जाएगा कैसे पता नहीं. You cannot be just like you can take you or the things granted कि भाई चलेगा, देखा जाएगा, हम संभाल लेंगे. No, you have to be very very particular if you are in a production part. You have to be very very perfect. You have to be very very professional when you are dealing with the people, when you are dealing with the companies. So what exactly I need to talk to you about this is that the idea should be generated properly, keeping in mind what customer wants rather than keeping in mind what you want. Number two, every idea must be screened properly. Every idea must be screened properly so that there must not be any loophole or changes in the product. There must not be any kind of a misguiding about the product. हर एक आइडिया चेक करो, हमको परवड़ेगा, हम बना सकते हैं और हमारे कस्टमर्स को खरीदेंगे. Everything you have to check in detail about this. Then comes concept development. You have to develop a concept properly and you have to understand that what exactly the concept should be, how the product will look like, how product will be look like. Then comes market strategy. अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है, जब प्रोडक्ट रेडी हो गया है तो हमारा मार्केट के अंदर एंटर होने का स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा. हाउ वी आर गोइंग टू एंटर द मार्केट. Market strategy is nothing but the way we are going to send the product to the market, approach the people to the market using research. यहाँ पे तुम्हें रिसर्च की मदद लगेगी to identify target market. कि आपके टारगेट कौन है. याद रखना, टारगेट मार्केट आर द पोटेंशियल मार्केट्स. टारगेट मार्केट आर द पोटेंशियल मार्केट. वो लोग हैं जो आपको प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं. यू डू नॉट इग्नोर दिस पीपल. You have to respect these people and you have to reach to these people in a proper way so that they will give you a proper result also. So you have to focus upon the target market. You have to do the research. You have to find out what your target wants, what your people wants. You have to find out what your target customer likes and dislikes. उनको क्या चाहिए, उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वो उनको बताना पड़ेगा आपको. सो ये आपको मार्केट स्ट्रेटेजी यानी कि यहाँ पे यूजिंग रिसर्च to find out what exactly the customer requires. You have to find out what exactly your client requires and accordingly you have to produce the goods. Hope you understood the things. So market strategy. Then comes feasibility study. Then comes feasibility study. Try to understand the word feasibility. फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या मैं ये कर सकता हूं, फिजिबल है. एक एग्जांपल की मैं बात करता हूं. एक बॉक्स है, वो बॉक्स की कैपेसिटी है 20 kg का वेट उसमें उठा सके, इतना ही वो कैपेसिटी है. अगर उससे ज्यादा वेट रखा और उसको उठाया गया तो वो टूट जाएगा. हर एक का कैपेसिटी होता है, फिजिबिलिटी होता है. समझना पड़ता है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है. और अगर उसमें हमने 20 GB से ज्यादा, 20 kg से ज्यादा वेट रखा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. इट मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वो 20 kg से ज्यादा वेट का है और वो प्रोडक्ट आप लोग वो 20 kg का वेट उठा सकते, वैसे बॉक्स में रखोगे तभी वो काम होगा. अगर नहीं उठा सकता है तो वो टूट जाएगा. फिजिबल सोचो ना. फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बोला कि मेरे को अकाउंट्स के अंदर 100 मार्क्स आएंगे. कोई मुझे बोलता है मुझे अकाउंट में 100 में से 101 आएगा, तो क्या फिजिबल है? कुछ भी बोल नहीं सकता है ना तुम. फिजिबल बात करो. फिजिबल का मतलब क्या होता है, जो प्रैक्टिकल हो सकता है ना उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी. जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में तुम कुछ भी बात करेगा तो इट इज नॉट फिजिबल. सो यू हैव टू थिंक फिजिबली, यू हैव टू थिंक फिजिबली, यू हैव टू थिंक प्रॉपरली.
फिजिबल का मतलब यहाँ पे सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा, फिजिबल मीन्स आर यू एबल टू डू दैट, क्या तू वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, दैट इज फिजिबिलिटी स्टेट. फिजिबिलिटी इज नथिंग बट वेदर यू आर एबल टू डू द थिंग्स और नॉट, वेदर यू आर एबल टू कंप्लीट द थिंग्स और नॉट. इसीलिए यहाँ पर कैन यू प्रोड्यूस इट, कैन यू सेल इट, क्या तू प्रोड्यूस कर सकता है, क्या तू प्रोडक्ट को सेल कर सकता है या नहीं कर सकता है. जस्ट चेक कर वेदर इट इज फिजिबल और नॉट. फिजिबल यानी कि कर सकता है या नहीं कर सकता. तो आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, उसके हिसाब से मार्केट का स्ट्रेटेजी बनाया, देन यू चेक विद द फिजिबिलिटी स्टडी, देन कम्स प्रोडक्ट डिजाइन स्टार्ट करना. अब सब कुछ रेडी है, आपने सब सर्वे कर लिया है, आपको सब पता है कि मार्केट को क्या चाहिए, पब्लिक को क्या चाहिए, कैसे मुझे बेचना है, हाउ आई शुड गो टू द पीपल, हाउ आई शुड अप्रोच टू द पीपल, एवरीथिंग यू नो, सब कुछ पता है. अब तेरा प्रोडक्ट का डिजाइन का काम चालू कर, प्रोडक्ट तैयार करना शुरू कर देगा. एडिंग फीचर टू प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर वांट्स, एडिंग फीचर्स, ऐसी सारी चीजें अपने हमारे प्रोडक्ट में ऐड करनी है जो कंज्यूमर को चाहिए, कंज्यूमर को पसंद है, कंज्यूमर लाइक करते हो, कंज्यूमर की नीड है, वो सारी चीजें हमें कंज्यूमर तक पहुंचानी पड़ेगी. सो एडिंग फीचर्स टू प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर वांट्स, जो कंज्यूमर को चाहिए वो उस तक पहुंचाओ. दैट इज व्हाट अ प्रोडक्ट डिजाइन इज अबाउट. देन कम्स टेस्ट मार्केटिंग. देखो दोस्तों, एक बार प्रोडक्ट रेडी हो गया, मार्केट में जाने के लिए तैयार है, प्रोडक्ट रेडी हो गया है, मार्केट में जाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर चेक करनी पड़ेगी हमें कि जाने से पहले एक बार हम देख ले कि सब तरीके से वो सही है या नहीं है. एक बार टेस्ट किया जाए, एक बार चेक किया चाहिए, एक बार हमें प्रॉपरली उसको टेस्टिंग करके भेजना चाहिए. सिंपल सा बात होता है, घर के अंदर भी हम लोग जब खाना पकाते हैं, कोई भी एक डिश बनाई रहेगी तो घर की महिला या जो भी खाना बनाता है वो एक बार उसको बाहर देने से पहले थोड़ा टेस्ट करती है, नमक बराबर है, मिर्ची बराबर है, टेस्ट बराबर है. वो खुद देख कर सकते तो किसी को बोला जरा चेक कर तो बराबर हुआ या नहीं, करते हैं ना. दैट इज व्हाट टेस्ट. तो प्रोडक्ट एक बार मार्केट में लॉन्च होने से पहले एक बार टेस्टिंग होना जरूरी है. दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट मार्केटिंग. टेस्ट मार्केटिंग का रिलीजिंग प्रोडक्ट टू स्मॉल सैंपल टू गेट द फीडबैक. जिससे क्या मिलेगा अपने को, फीडबैक मिलेगा, आइडिया मिलेगा. सैंपल तो दिखाओ लोगों को, कुछ ग्रुप को, सबको नहीं, सम पीपल. You have to check with the some people and ask them whether they are happy with this or not. That is what we can call it as a taste marketing. So releasing the product to small sample to gain the feedback. Releasing the product to the small sample and a small group of people to get the feedback. क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ होगा, गलती होगी, कमी होगी, प्रॉब्लम होगा, तो वो मार्केट में जाने के बाद समझता था वो पहले ही समझ जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास टाइम है उसको चेंज करने का. यू कैन चेंज द प्रोडक्ट immediately, you can rectify the thing immediately, you can find out the loopholes in the product immediately. Okay, that is what we can call it as a test marketing. इसको क्या कहेंगे हम, test marketing. Once the product is tested, once the product is defect free का मतलब होता है कुछ भी उसमें कमी नहीं है. और कभी-कभी होता है ना, हमें हमारे प्रोडक्ट के अंदर कमी नहीं दिखती, लेकिन जो सामने वाला रहता है उसको हमारे प्रोडक्ट में कमी दिखती है. तो उसका अपने को रिव्यू मिल गया तो दैट विल बी बेटर. हमें सच्चाई समझ में आएगी, हमें हमारे प्रॉब्लम समझ में आ गए, और अभी आने वाले टाइम पे हम वो प्रॉब्लम नहीं होने के लिए हम पूरी मेहनत करके उसको नया रेक्टिफाई करेंगे. सो टेस्ट मार्केटिंग. अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट टेस्ट भी हो चुका है. सबसे पहले हमने आइडिया जनरेट किया, क्या चाहिए मार्केट में, कैसे हम बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं,
उसके बाद जितना भी आइडिया था वो हर एक आइडिया का स्क्रीनिंग किया कि सच में कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट चाहिए। ओके, ये प्रोडक्ट में और कितना कंपटीशन हुआ है, कितने कॉम्पिटिटर्स है इसके अंदर, वो भी चेक करो। कितनी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कितने कंपनीज इसमें बिजनेस करके अच्छा खासा कमा रहे हैं। देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका एक कॉन्सेप्ट बनाओ, सैंपल बनाओ, डिजाइन बनाओ, जिससे कस्टमर को समझे कि एग्जैक्टली ये क्या हम खरीदने वाले हैं। देन मार्केट में कैसे एंटर होना है उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाओ। यहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, डिटेल में रिसर्च जाना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ लीड एंड टेक अ maximum reports from the people about what exactly and how exactly they want. Then you have to do the feasibility study. Feasibility check करो, कैन यू प्रोड्यूस इट, क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन यू सेल इट, क्या हम इसको बेच सकते हैं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट डिजाइन, कौन सा डिजाइन का प्रोडक्ट, कैसा डिजाइन होगा, कैसा एडिशनल फीचर्स हम दे सकते हैं, कैसा हम नया कुछ और कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखना पड़ेगा। देन वी हैव टू डू द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बाय सम पीपल और सम अप्लाइंग टू सम सैंपल, कुछ लोगों के ऊपर वो प्रोडक्ट अप्लाई करके वी हैव टू गेट द टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड समझेगा कि ये प्रोडक्ट सही गलत क्या है। So that is what we have to do about the test marketing. And अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है कि मार्केट में एंट्री करना है, रिलीजिंग द प्रोडक्ट टू द एंटायर पॉपुलेशन। अब प्रोडक्ट आ चुका है, अभी टाइम आ चुका है कि प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है। और इसी समय पे जब प्रोडक्ट हम मार्केट में एंट्री करेंगे, यहीं पे शुरू होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसी को कहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन होगा और अपना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पहला फेज शुरू होगा। मार्केट में एंट्री होने के लिए तैयार है एंड प्रोडक्ट बिगिंस टू प्रोडक्ट नाउ मार्केट प्रोडक्ट बिगिंस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी। सो दोस्तों, एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन डिटेल। सो दीज आर द स्टेजेस, idea generation about the product, idea screening about the product, concept development about the product, then comes market strategy for the product, then comes feasibility study of the product, then comes product design, then test marketing of the product, and then market entry of the product. और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगा। सो यहाँ तक सब लोगों को क्लैरिटी है? एक क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, आप एग्जाम के अंदर ए वाला चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट दिस पर्टिकुलर चार्ट। ओके, नाउ यहाँ तक सबको क्लियर है तो से यस और नो इन द चैट बॉक्स। मैं आगे बढ़ू। इफ यू आर विथ मी हियर, यस विनय, ओके, गुड गुड, थैंक यू, थैंक यू। ओके, now product life cycle. Product life cycle describes the stages a new product goes through from beginning to end. Beginning से लेके end तक प्रोडक्ट कौन से प्रोसेस से गुजरता है, उसी को कहा जाएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। It describes the stages a new product goes through from beginning to end. ये डिस्क्राइब करता है कि नया प्रोडक्ट कौन से प्रोसेस से गुजर रहा है, कहां तक जाने वाला है। It is a tool used by marketing professional. It is a tool used by marketing professional to understand the market. ये मार्केटिंग पीपल इसको अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं एंड प्लान द मार्केटिंग मीन्स और अकॉर्डिंगली अपना प्लान भी तैयार करेंगे।
It is a tool used by a marketing professional to understand the market and plan the marketing mix, और accordingly marketing mix का planning भी करेंगे. So product life cycle एक प्रोसीजर है, एक स्टेजेस है, 4 स्टेजेस से वो गुजरता है, 4 अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है. इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज. हर एक प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, एनी प्रोडक्ट इट विल बी, कुछ भी हो सकता है. अब इसको व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जरा ध्यान से देखना. व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? बिकॉज जैसे ह्यूमन बीइंग का लाइफ होता है, जैसे वी आर लिविंग अ लाइफ, जैसा हमारा लाइफ होता है, हम भी लाइफ के अलग अलग एज ग्रुप से पसार होते हैं और एक दिन सबका अंत आता है. वैसे ही प्रोडक्ट का भी लाइफ होता है. आप देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग का लाइफ कैसे होता है. इंट्रोडक्शन, दैट इज बर्थ, देन कम्स ग्रोथ, देन कम्स मैच्योरिटी एंड देन कम्स रिटायरमेंट, और वी कैन से डिक्लाइन. जैसे एक बच्चे का बर्थ होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज, देन उसका ग्रोथ होता है, बड़ा बनता है, देन एक टाइम आता है कि वो एजुकेशन लेके हाई लेवल पे पहुंच के एक मैच्योरिटी के लेवल पे जाता है कि वो इस दुनिया के लड़ने के लिए तैयार हो रहा है. एंड एंड कम्स द रिटायरमेंट और डिक्लाइन स्टेज. आप देख सकते हो ध्यान से, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हो जब भी अपने लाइफ के अंदर वो शुरू होता है तो उसका कर्व देखो कैसे ऊपर 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 जा रहा है. जिस समय पे वो मैच्योर्ड होता है, जिस समय पे वो मैच्योर्ड यानी कि अपने करियर के और अपने लाइफ के सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है, उस समय पे आप कर्व देख सकते हो एकदम हाईएस्ट टॉप पे है. दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी. और उसके बाद तो वो डिक्लाइन और रिटायरमेंट के तरफ आ रहा है. यानी कि प्रोडक्ट का भी ऐसा होता है. इंट्रोडक्शन के टाइम पे धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है, आगे बढ़ता है, ग्रोथ होता है, आगे बढ़ता है, मैच्योरिटी के लेवल पे जाता है, टॉप लेवल पे जाके बैठ जाता है, एंड फाइनली एट द एंड वो रिटायरमेंट की तरफ जाके अपना करियर खत्म कर देता है. ओके, सो दिस इज व्हाट. अभी ये कर्व को क्या बताया गया है? सेल्स कर्व. कैसा सेल्स आगे अपना इंप्रूव हो रहा है, कैसा सेल्स अपना आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हो. हाउ सेल्स इज इंक्रीजिंग, हाउ सेल इज गोइंग अहेड. ओके, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड रिटायरमेंट. इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड रिटायरमेंट, और या तो डिक्लाइन. ये 4 स्टेजेस हमें यहाँ पे पढ़ने हैं. अब आप देख सकते हो सबसे पहला क्या है. सबसे पहला is a market introduction, also called as a product launch. अब इस ग्राफ के अंदर आप देखोगे तो वो कहां पे मिलेगा आपको? सबसे पहला स्टेज. यहाँ फर्स्ट स्टेज जहां पे इंट्रोडक्शन एंड बर्थ ऑफ द प्रोडक्ट लिखा है, ये जगह पे हमने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है. अब ऑब्वियसली जब हमारा प्रोडक्ट नया है तभी उसका सेल्स उतना नहीं होगा, उसके बायर्स उतने नहीं रहेंगे, क्योंकि लोगों को अभी तक प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है. पीपल आर नॉट नोइंग अबाउट द प्रोडक्ट, they are not knowing about what exactly the products are, qualities, what exactly the things are. So the first thing is introduction or birth of the product. यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ चल रहा है. तो फर्स्ट स्टेज इज इंट्रोडक्शन. Market introduction is also called as a product launching stage. Market introduction is also called as a product launching stage. It is also called as introduction and product launching stage. आप देख सकते हो जैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है तभी शुरुआत में बहुत प्रेशर रहता है, बहुत मेहनत लगती है. ये इसे कहा गया है इट इज एन एक्सपेंसिव फेज. It is an expensive phase. It is a highly expensive phase because high costs are associated with design, manufacturing, promotional activities, and inventory.
to meet the anticipated demand. Here, high cost, बहुत 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 खर्चा लग रहा है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड इन्वेंटरी में, क्योंकि ये स्टेज वो है जब आप लोग नया एंट्री कर रहे हो, प्रॉपरली पूरा खर्चा किया है डेवलपमेंट के ऊपर, एंड यहाँ पे और भी खर्चे लगेंगे जैसे कि अदर कॉस्ट इंक्लूड द न्यू पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड मार्केट रिसर्च। आप लोगों ने जो प्रोडक्ट डिजाइन के टाइम पे किया वो सारी चीजें यहाँ पे हमें और भी मेहनत करके लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब हम लोग पब्लिक के सामने निकल पड़े, अब हम लोग पब्लिक के सामने एंटर हो चुके हैं। So high costs are associated with design, manufacturing, promotional activities and inventory to meet the anticipated demand. Anticipated demand का मतलब होता है जो हमारा डिमांड फ्यूचर में होने वाला है वो सारा पूरा करने के लिए हमें अभी बहुत 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 खर्चा करना पड़ेगा, हेवी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। एंड अदर कॉस्ट उसमें अंदर जैसे कि न्यू पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड मार्केट रिसर्च, अगेन विच रिक्वायर न्यू पैकेजिंग, लेबलिंग एंड हेवी मार्केट रिसर्च। हमें बहुत बड़ा मार्केट रिसर्च खर्चा करके करना पड़ेगा। वो बाइस न्यू प्रोडक्ट, अभी नया नया प्रोडक्ट है कंपनी का, कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, उनको कहा जाएगा अर्ली एडॉप्टर्स। क्या कहा जाएगा? अर्ली एडॉप्टर्स। जो हमारे प्रोडक्ट को अर्ली एडॉप्ट करते हैं, दे आर द अर्ली एडॉप्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। So, this is the first stage in product life cycle. In examination, they are asking, what is product life cycle? Question mark. What are the phases, stages of product life cycle? What are the phases or stages of product life cycle? So the first stage is market introduction. Immediately आप लोगों को ज्वाइन करना है नेक्स्ट 3 मिनट्स के अंदर। इमीडिएटली आप लोगों को आना है लेक्चर सेकंड में। हम आने वाले ये 4 स्टेजेस को परफेक्टली पढ़ेंगे उसके ग्राफ के साथ, जो एग्जाम में आपको कंपलसरी लिखना होता है। ज्वाइन इमीडिएटली। थैंक यू।